Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I'm going to prepare cash flow statement with the indirect method, and here is the available data with the help of which we can prepare the cash flow statement. So here is income statement of the current year, and here is sales revenue, cost of goods sold expense, operating expenses, excluding depreciation, because depreciation will be used up in some calculations, so it has been separately shown. So here is comparative balance sheet of the 2 years. We need comparative balance sheet of the 2 years for the preparation of the cash flow statement. One of the current year and one for the previous year. And current year balance sheet and previous year balance sheet is shown here. So it has already been discussed that you will be having some calculations of the balance sheet where you will calculate the increase or decrease of the values, all the values available, like land. Here is 110,000 increase in land, and 120,000 increase in building, and so on. Whatsoever values are given, you will count down you will calculate the increase or decrease in everything, because this increase and decrease will be calculated, will be used for the further calculations in the cash flow statement. So after preparing all the data in this manner, here are some additional information. Additional information usually is available regarding the adjustments and some other transactions which have been carried out during the whole year for the organization. So here is depreciation expense. I will read it out so that we will be betterly using these values in our preparation of the cash flow statement. Depreciation expense was comprised of 6,000 euros for building and 3,000 euros for equipment. And depreciation has been divided into two parts, and then second point is the company sold equipment with a book value of 7,000 euros. एक हमारी जो है वो इक्विपमेंट था उसकी बुक वैल्यू 7,000 यूरोस है. रिसेंटली अभी आप इस टॉपिक से गुजरे हैं जिसके अंदर हम डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स करते थे, उसमें आपको अच्छे तरीके से याद होगा. और अब इसमें एक और चीज़ भी आप समझ सकते हैं कि हमने पहले फिक्स एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के टॉपिक को देखा, रिसीवेबल के टॉपिक को देखा. स्पेशली ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टॉपिक जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट से पहले ज़रूर रीड होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस हैं कि अगर आपने ना उसको पढ़ा हुआ हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसके एनालिसिस में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, ऑल्दो इम्पॉसिबल है कि आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो इक्विपमेंट एक कंपनी ने 7,000 का जो था उसकी बुक वैल्यू थी, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी बैलेंस शीट शो कर रही थी कि वो 7,000 का एसेट है. आपने उसको 4,000 में सेल आउट कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपने उसको, आपको कैश जो रिसीव हुआ वो $4,000 है, और 3,000 आपने उसको लॉस में जो है वो सेल आउट कर दिया. इसकी आप जो है प्रॉपर जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन वो इस वक्त रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप अपनी सहूलत के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको अपनी रफ वर्किंग में कहीं पे कर सकते हैं. देन द थर्ड our additional piece of information is that you have issued 110,000 euros of long-term bonds in direct exchange for land. इसमें वाज़ेह रहे कि इसमें आपका लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, यानी कि जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं बॉन्ड्स पेबल नॉन करंट लाइबिलिटीज़, इसमें 110,000 का इजाफा हुआ है. अब आप ज़रा अच्छे तरीके से चीज़ों को टैली करते चले जाएं कि नीचे दिया गया नोट नंबर 3 वो शो कर रहा है कि 110,000 जो है वो आपके लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इजाफा हुआ है, और ऊपर जो आपने कैलकुलेशन करके देखी वो भी उसको कंफर्म कर रहा है. तो इस तरह से आपको कंफर्मेशंस जो हैं वो नीचे की दी गई एडिशनल इंफॉर्मेशन और ऊपर मौजूद डाटा में ये टैलिंग या जो है वो ज़रूर होती चली जाएगी. अगर ये टैलिंग होती चली जाएगी तो आपको मामला जो है वो मज़ीद बेहतर समझ आते चले जाएंगे. Then fourth point is a building costing 120,000 was purchased for cash. अब इसमें बता दिया. अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, वो ये कि तीसरे पॉइंट में 110,000 जो है वो तो आपने कंफर्म कर लिया कि इंक्रीज हो रहे हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं है. इनडायरेक्ट एक्सचेंज फॉर लैंड, यानी
आपने जो है कहीं किसी से लैंड एक्वायर की है, लैंड परचेज की है और उसको उसके बदले में लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स दे दिए हैं। यहाँ पे कहीं पे भी कैश नहीं आया, तो ये ट्रांजैक्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए जो है वो मौजूद नहीं है। तो इसको कैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करेंगे, ये भी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से एंड बिल्डिंग कॉस्टिंग 120,000 यूरोज वाज परचेज फॉर कैश, तो ये भी कैश में है और इक्विपमेंट भी कैश पे परचेज किया गया है। ऑर्डिनरी शेयर्स 20,000 के जो है वो इशू किए गए हैं। यू कैन सी ओवर हेयर दैट देयर इज 20,000 इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ द शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। और इसी तरीके से जो है हम साथ साथ रिटेन अर्निंग्स में भी देख रहे हैं कि इंक्रीज हुआ है। तो रिटेन अर्निंग्स में इंक्रीज जो होता है वो दो फैक्टर्स होते हैं। इसके अंदर नेट इनकम जो है वो ऐड होती है इनकम स्टेटमेंट से और डिविडेंड्स वगैरह जो है वो पे किए जाते हैं, तो इस तरह से उसमें डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह कंपनी डिक्लेयर्ड एंड पेड 29,000 यूरोज कैश डिविडेंड, तो डिविडेंड भी पे किया गया है 29,000। और इस चीज़ को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहाँ पे किया गया है। तो ये आपको स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी में ये नज़र आ जाएगा कि ये आपने डिविडेंड को पे किया हुआ है। So let's move on to the preparation of the cash flow statement. So this is step one for the preparation of the operating activities. This is operating activities section. तो इसके अंदर क्या स्कीम है, क्या हमारा फार्मूला है जिसके तहत हम कैलकुलेशंस करेंगे, वो ये है कि we have to determine the net cash provided or used by operating activities by converting net income from accrual basis to cash basis. तो यानी हम जो है accrual basis पे जो net income बनी हुई है, इनकम स्टेटमेंट जो शो कर रही है, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे नेट कैश में। और स्कीम ऑफ कैलकुलेशंस क्या होगी, वो ये होगी कि हम नेट इनकम से स्टार्ट लेंगे। नेट इनकम के अंदर तमाम रेवेन्यूज आ गए, तमाम एक्सपेंसेस आ गए, तमाम चीज़ें आ गई जो कि हमारे कैश फ्लोज हो सकती हैं। तो लेकिन वो चूँकि एक्रूअल बेस्ड पे बनी हुई है, तो हम उसमें से क्या करेंगे कि नेट इनकम में से जो चीज़ें जो हैं वो कैश पे नहीं हुई हुई उनको हम उसमें से माइनस कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो फिर पीछे जो बचेगा वो कैश बेस पे रह जाने वाला नेट कैश होगा। तो ये इसकी स्कीम है। इस चीज़ को आप जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए। बिफोर आई मूव इनटू सम कैलकुलेशंस, तो एक बहुत अहम जो है रूल ऑफ थंब है जो कि आपकी पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट पे लगेगा, will apply to both current assets and current liabilities, rather fixed assets and long term liabilities as well। तो इसका मतलब है कि ये पूरी कैश फ्लोज में जितने एसेट्स हैं, जितनी लाइबिलिटीज़ हैं, उन सब पे ये जो है रूल अप्लाई होगा। इसको ज़रा गौर से देखिए। अभी आप थोड़ी देर पहले बैलेंस शीट के अंदर जो है इंक्रीज एंड डिक्रीज कैलकुलेशन कर रहे हैं। आपने उसमें ये भी साथ लिख लेना है कि ये जो चेंज आई है उस एसेट में या उस लाइबिलिटी में, ये डेबिट चेंज है या क्रेडिट चेंज है। अगर क्रेडिट चेंज होगी तो कैश इनफ्लो होगा, डेबिट चेंज होगी तो कैश आउटफ्लो होगा। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रूल ऑफ थंब। ये एक रूल जहन में रख लीजिए और ये रूल आपको जो है पूरी की पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो है वो फ़ायदा देगा। अगर आप चाहते हैं इस रूल की एप्लीकेशन को देखना, तो हम एक दो आइटम्स की हद तक जो है इसको वापस आके हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल हम देखना चाह रहे हैं इसको, सबसे पहले करंट एसेट्स के मामले में देखते हैं। सो देयर इज इन केस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस देयर इज 4,000 इंक्रीज। तो करंट एसेट्स में इंक्रीज जो होता है वो डेबिट चेंज होती है। तो जब डेबिट चेंज होती है तो हम रूल में कह के आए हैं ये दिस इज कैश आउटफ्लो, तो आपने इसको आउटफ्लो के तौर पे 4,000 को लिखना है। इन्वेंटरी जो है इसके अंदर इंक्रीज हुआ है, डेबिट चेंज हुआ है, तो हम ये थोड़ी देर पहले कह के आए हैं कि डेबिट चेंज जो है कैश आउटफ्लो होता है, तो इसको हम आउटफ्लो यानी कि माइनस के तौर पे लिखेंगे। अभी फ़िलहाल इसकी डिटेल के साथ हम इसकी कैलकुलेशंस को देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, टिल देन उसके में फिर हम इसकी प्रेपरेशन की तरफ जाएंगे। तो इसमें स्कीम क्या है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि वी विल कन्वर्ट फ्रॉम अक्रूवल बेसिस टू कैश बेसिस। तो इसमें क्या क्या स्ट्रेटजीज होंगी, क्या क्या लाया अमल होगा, वो ये होगा कि वी विल हैव सम कॉमन एडजस्टमेंट्स टू नेट इनकम। वो एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, ये 3 एडजस्टमेंट्स मोस्टली होती हैं। उसमें एड बैक नॉन कैश एक्सपेंसेस,
डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन एक्सपेंस वगैरह को हम ऐड बैक कर देते हैं। इसकी लॉजिक समझ लीजिए कि डेप्रिसिएशन चूँकि एक ऐसा एक्सपेंस है जिसके अंदर हमारा कैश इन्वॉल्व नहीं होता, तो जब कैश ही हमारा इन्वॉल्व नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि नेट एंड इनकम की डिटर्मिनेशन के लिए हमने डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस शो किया था और उसके अंदर से हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया हुआ है अपने रेवेन्यूज में से। लेकिन दर हकीकत इस वक्त जब हम कैश बेसिस पे कन्वर्ट हो रहे हैं तो इस एक्सपेंस की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, उसमें से माइनस होने की लॉजिक नहीं बनती, उसकी जो है वो वहाँ पे जगह नहीं बनती कि वो उसमें से माइनस हो, क्योंकि उसके अंदर कैश हमारा यूज अप नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जब डेप्रिसिएशन जो है कैश बेसिस के अंदर उसकी जगह नहीं बनती तो हम उसको ऐड बैक करेंगे, उसकी वजह से वो चूँकि माइनस हो चुका है इसलिए हम उसको जो है वो ऐड बैक करके कैश बेसिस पे उसको ले आएंगे, क्योंकि ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। रूल याद रखें कि जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे उनको हम ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि फिक्स एसेट डिस्पोजल के अंदर गेन्स एंड लॉसेस होते हैं। गेन भी एक नॉन कैश आइटम होता है, तो अगर गेन है तो उसको डिडक्ट कर देंगे, लॉस है तो उसको ऐड कर देंगे। लॉजिक वही है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ शेयर की, क्योंकि ये नॉन कैश बेसिस की का लॉस और गेन होता है। तीसरी चीज़ जो एनालाइज चेंजेस टू नॉन कैश करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ है, ये वो सेक्शन है जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ शेयर किया। चलिए जब हम इसकी अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं, इसमें हमारा स्टेप 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को अब हम इसमें से जो है ऐड बैक करने लगे हैं। ये जो एरिया है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और ये जो 2 लाइनें 3 लाइनें, ये आप ऑब्वियसली वहाँ पे अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे। आप सिर्फ जो है नीचे ये जो बोल्ड में ब्लैक कलर में जो बोल्ड में लिखा हुआ है, यहाँ से आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। ये आपके लिए सिर्फ इंस्ट्रक्शन है जो मैं थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर कर आया हूँ कि ऑल्दो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूसेस नेट इनकम को रिड्यूस करती है, इट डज नॉट रिड्यूस कैश। ये बहुत अच्छा एक मुख्तसर सा जुमला है जो कि आपको कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर कर देगा। तो लिहाजा जब ये कैश को रिड्यूस नहीं करता तो हमने उसको जो है जिस वक्त हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू किया था उस वक्त हमने ये अज्यूम कर लिया था, जैसे हम मैथमेटिक्स में कुछ जगहों पे अज्यूम कर लेते हैं कि नेट इनकम इज इक्वल टू नेट कैश। चूँकि हमने नेट इनकम को नेट कैश के इक्विवेलेंट करार दे दिया, वो आप सोचेंगे वो कैसे, वो ऐसे कि जब हमने इसको कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, हमने अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट की, उसके नीचे लिखा नेट इनकम, तो इसका मतलब है कि ऊपर हेडिंग जब हमने कैश फ्लोज लिखा और नीचे हेडिंग में नेट इनकम लिखा, तो इसका मतलब है कि हमने अज्यूम कर लिया कि नेट इनकम इज इक्वल टू नेट कैश। लेकिन ऐसा करने में हमें महसूस हुआ कि हमने इसके बहुत सारे तकाज़ों को पूरा नहीं किया। वो तकाज़े क्या हैं कि नॉन कैश आइटम्स को जितनी भी हैं उनको हम इसमें से उसके इफ़ेक्ट को रिमूव कर दें। तो लिहाजा हमने उसको वन बाय वन उसके इफ़ेक्ट को रिमूव करना शुरू कर दिया। चूँकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक नॉन कैश आइटम्स है, उसको हमने ऐड बैक कर दिया। जिस तरह 145,000 नेट इनकम में 9,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किया, तो ये हमारी नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गया। तो अब हम वन बाय वन नॉन कैश आइटम्स को के असर को रिमूव करते चले जाएंगे, इफेक्ट को रिमूव करते चले जाएंगे और फाइनली इस तरह से हमारा आंसर जो आएगा दैट वुड बी नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसी तरह दूसरा आइटम जो था जो कि हमें इसमें कवर करना है वो है गेन्स और लॉसेस का। सो सपोज जहाँ पे लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट्स है हमारी इलस्ट्रेशन के अंदर, तो कंपनी शुड रिपोर्ट कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सेल of plant asset in the investing activities section. Because of this, any loss on sale is added to net income in the operating section. अच्छा, ये याद रहे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर फिक्स एसेट्स का जो भी मामला होते हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कवर होते हैं, लेकिन जहाँ कहीं हम उनको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं, बाय और सेल करते हैं, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो कवर होते हैं। लेकिन जो मामलात जो इसके सेल और परचेज़ के होते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कवर किए जाते हैं। तो जो भी गेन और लॉस का मामला होगा वो नेट इनकम में जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। जो भी लॉस है, लॉस ऑन डिस्पोजल है, उसको ऐड करेंगे नेट इनकम में और जो गेन है उसको डिडक्ट करेंगे। ये हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की स्कीम है और इसमें लॉजिक वही है जो कि डेप्रिसिएशन वाली लॉजिक है। वो मैं आपके साथ अच्छे तरीके से शेयर कर रहा हूँ। वो लॉजिक क्या है कि हमने नॉन कैश जो इफ़ेक्ट है उसको ख़त्म करना है। नॉन कैश आइटम्स को जब हम ख़त्म कर देंगे तो पीछे सिर्फ कैश आइटम्स रह जाएंगी, दैट वुड बी नेट कैश generated from operating activities. So here we see our cash flow statement.
सो अवेलेबल डाटा में अगर आप जाके देखें, या भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, आपको याद होगा कि 7000 हमारे एसेट की बुक वैल्यू है और 4000 हमने उसमें से कैश रिसीव किया है। तो आप अपनी जर्नल एंट्री भी प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे भी बात क्लियर है कि योर लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट इज 3000। 7000 माइनस 4000 इक्वल्स टू 3000। तो इसको भी हमने लॉस ऑन डिस्पोजल को भी ऐड कर दिया, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी ऐड कर दिया और लॉस ऑन डिस्पोजल को भी ऐड कर दिया। इस तरीके से एक ही लॉजिक से कि हमने नॉन कैश आइटम्स को जो है वो ऐड बैक कर देना है। ठीक है, तो जो लॉजिक तकरीबन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की थी, वही लॉजिक तकरीबन जो है लॉस ऑन डिस्पोजल की भी है। गेन और लॉस जो है आइटम्स जो होते हैं ये नॉन कैश आइटम्स हैं। इस तरह से अब हमने दो आइटम्स को अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में पुट कर दिया है। इसके बाद अब हम तीसरे आइटम की तरफ आते हैं, जो कि चेंजेस टू नॉन करंट एसेट्स अकाउंट। तीसरी आइटम है जो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन में हमने ऐड करनी है, वो है कि हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर जो चेंजेस होती हैं वो हमने इसको इसके अंदर ऐड और लेस करनी है। याद रहे कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की क्या इसके अंदर लॉजिक है, वो ये है कि ये हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ होती हैं। इसके अंदर मैंने आपको जो रूल ऑफ थंब बता दिया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी डिटेल लॉजिक भी मैं आपके साथ किसी नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूंगा, लेकिन इस वक्त हम थोड़ा सा इसको ईजी वे में देखते हैं। करंट एसेट्स में ज़रा देखें कि आपके सामने तीन आइटम्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंटरी एंड अकाउंट्स रिसीवेबल। तो मैंने आपसे क्या रूल ऑफ थंब शेयर किया कि व्हेनेवर देयर इज नेट क्रेडिट चेंज तो कैश इनफ्लो होगा, और नेट डेबिट चेंज तो कैश आउटफ्लो होगा। तो अब हम उसी तरीके से शुरू करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज जो है डेबिट चेंज होती है, कैश आउटफ्लो। इन्वेंटरी इंक्रीज हुआ है तो इसमें डेबिट चेंज है तो कैश आउटफ्लो। इन अकाउंट्स रिसीवेबल में डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब कि क्रेडिट चेंज है, कैश इनफ्लो। अब इसकी लॉजिक थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन टू सम एक्सटेंट यहाँ पे थोड़ी सी इसकी लॉजिक बताना ज़रूरी है, वो आप ज़रा समझ लीजिए कि अकाउंट्स रिसीवेबल के अकाउंट को आप पकड़ें कि 30,000 एट द एंड ऑफ 2016 इसका बैलेंस है और 20,000 एट द एंड ऑफ द 2017 इसका बैलेंस है। तो इसका मतलब ये है कि 30,000 लोगों ने हमारे 16 के एंड पे देने थे, उसके मुकाबले में हमारा जो है 2017 में सो रिसीवेबल हमारे 30,000 से 20,000 पे आ गए। एक साल को अगर दूसरे साल से कंपेयर करें तो इसका मतलब है कि ये डिक्रीज हो गए। डिक्रीज होने का क्या रीज़न है, फौरी तौर पे आपके जहन में आएगा। ऑब्वियसली अकाउंट रिसीवेबल उसी वक्त डिक्रीज हो सकते हैं जब उनकी पेमेंट हुई हो। जब हमारे रिसीवेबल्स ने हमें कैश दे दिया होगा तो रिसीवेबल डिक्रीज हो गए होंगे, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। तो इसके अंदर आप ज़रा गौर से देखें कि 10,000 से इसका मतलब है कि कैश इंक्रीज हुआ है। तो यही इसमें से बात समझाने की है कि व्हेनेवर अकाउंट रिसीवेबल इज डिक्रीज्ड तो कैश आपको रिसीव हुआ होगा। तो इस तरीके से जो है इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेके आते हैं कि दिस इज रीजन ऑफ कैश इनफ्लो। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लें, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन अब मिसाल के तौर पे इन्वेंटरी जो है 10,000 से 15,000 पे चली गई है। इन्वेंट्री जो है हमारा स्टॉक है, हमने इसको परचेज किया होगा, तो ये अगर इंक्रीज हुआ है एक तारीख से दूसरी तारीख के को कंपैरिजन करने में, तो इसका मतलब है कि 5,000 अगर ये इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली इसके अंदर हमारा जो है वो कैश आउटफ्लो हुआ होगा। तो ये इसकी लॉजिक है। तो ये मुख्तसर सी लॉजिक आप समझते हुए आप इसको जहन में रखें, और जो मैंने रूल ऑफ थंब आपके साथ शेयर किया है वो अपने जहन में रखें। और इस तरह ये तमाम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ पे ये रूल ऑफ थंब लगेगा, और वेरी इजीली यू विल बी एबल टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन। तो अब हम वापस आते हैं जल्दी से और अपने जो है तीसरे सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। ये आ गया आपका तीसरा सेक्शन। डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल जो है उसको आपने ऐड कर दिया, ठीक है। इन्वेंटरी को माइनस कर दिया, इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी माइनस कर दिया। तो इस तरह से ये आपने जो है तीनों एसेट्स का मामला देख लिया। कैश को आपने इसके अंदर नहीं शामिल करना, वो एंड पे मैं आपको बताऊंगा। तो ये अब आपके सामने है। तो इंक्रीज होने वाले करंट एसेट्स माइनस होंगे, डिक्रीज होने वाला करंट एसेट ऐड होगा। इसी तरह से अब हम जो है लाइबिलिटीज़ की तरफ आते हैं। लाइबिलिटीज़ के अंदर अगर आप देखें तो ये आपके सामने जो है वही क्रेडिट चेंज अगर होगी तो इनफ्लो होगा, प्लस होगा, और अगर डेबिट चेंज होगी तो आउटफ्लो होगा। तो इस तरह से
हम जो है इसको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ दोनों को देख लेंगे। फ़िलहाल अभी आप लोग इसकी कैलकुलेशंस करें। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन कंप्लीट हो गया। आप अपनी टेक्स्ट बुक में जाके भी कुछ एग्जांपल्स भी कर सकते हैं और ये वाली इलस्ट्रेशन भी देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन को थोड़ा मज़ीद डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।